So now what is go-to-market strategy? Simple meaning, as name suggests, when your product is ready, you want to reach out to the market, your customers. Because until unless you will not go to the market, you will not earn profit. If you will not earn profit, then how would you sustain your business? Because for any entrepreneur, business should be profitable, right? So in this module, we will discuss in detail that how you can reach out to market and you can not only launch your product, but you can make it successful. And there are very, very different ways, techniques, strategies by which you can not only reach out to the market, but you can tap the correct consumer base and you can evolve as a product, as an organization in the market in the longer run. Also, you can catch the required, the desired traction. So let's start in detail that how does this strategy works. Designing a launch strategy and early traction. So we need to understand that how it works. So there is a picture which self-explanatory. So I will take a couple of minutes to explain you that. Now, let's discuss about the brand building. If you'll see, then brand building is early brand awareness and reputation. Brand building is equivalent to early brand awareness, that people should know about your brand, right? For an example, that when Urban Clap came in, before that people used to take help of the local vendors. There is no harm in that. In fact, in the Urban Clap, all the vendors those are available, they are the local vendors only. But that brand, what it did, organize the market and make it more easier and convenient for us. So people got to know about the brand. And then comes to the reputation. Over a period of time, it sustained and made it reputation. If I can talk about myself as an individual user, uh, when I heard about Urban Club, it sounds very fascinating. And then I started using it, and it's many years now. I'm for any house help, be it AC service, be it if I need any plumber, electrician, I call them. So this is just one example, right? Visibility and exposure, access to target audience and media attention, very important for any brand, right? See, visibility creates a lot of avenues for you, right? If people are aware, if you are visible, people are aware. एक बहुत पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. That's true. Because if your brand is really, your product is good, your services is good, then you need audience. And if you are visible enough, then audience will definitely reach out to you. You can get direct access of your target audience. Like media attention is something that which is works both ways. Because if media talks about you, it means that you are the center of attraction in that moment, right? Why they are talking to you, it should be good, obviously, for obvious reasons. It should be good, but yeah, if media talks about you, then it means that there is another gap has been bridged wherein you can reach out to your target audience very easily. Feedback and validation, as we have discussed, that early feedback is very, very important. Very important, because see, feedback is something which not only helps you to get into the market, but helps you to keep going, sustain, grow, and evolve. So feedback plays a very important, and in our personal life as well, if you'll see that मैं आपको जब बीच बीच में कहता हूँ ना, इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल, वो इसलिए कि आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें. हमारी निजी जिंदगी में भी ये होता है कि हमको कभी फीडबैक देता है, हमारे टीचर्स हमको कहते हैं आप ये अच्छा करो, हम कोशिश करते हैं, वो चीजें ठीक होती हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ यार बेनिफिट. पेरेंट्स कुछ कहते हैं, है ना, कुछ मेंटोर्स होते हैं. वैसे ही प्रोडक्ट के साथ होता है. अगर फीडबैक वैल्यूएबल है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप सही दिशा पे काम कर रहे हो, तो वो आपको लगातार हेल्प करता है ग्रो करने. एंड द मार्केट वैलिडेशन अगेन समथिंग. अगर आपका फीडबैक अच्छा, आपने वो लूप क्रिएट किया, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था,
ठीक है, आपका फीडबैक अच्छा है, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अब जैसे ही वो गया अपनी ऑडियंस के पास, उसको मार्केट में वैलिडेट भी करते हैं। और क्या चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, वी आर वेरी हैप्पी that first of all we create a MVP, we give it to the a set of audience. We created a very seamless feedback loop. It worked out for us, and then we got into the market, and now market validates our products. What else we need as an entrepreneur? Everything is smooth. Insights and analytics, right? Obviously, that user behavior, how a user behaves, right, or a consumer behaves. Remember that we have created in the second model that we created some persona profile for an example, right? ये कहाँ से आता है, क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है. Based on that, we can do the intelligent assumptions, educated assumptions. कि okay, तो ये behavior होगा यूजर का इस प्रोडक्ट को लेकर, हम उसको analysis करते हैं उसका. And based on that, we'll take a decision. And then other than data-driven decision, though these are interlinked. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है विद व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट मॉड्यूल व्हिच इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. इफ यूजर इज बिहेविंग समथिंग, व्हाई ही और शी इज बिहेविंग और द कंज्यूमर इज बिहेविंग, जब वो व्हाई आ जाता है तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है. तो उसमें हमको बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को, समझने को मिलती है. जब डेटा ड्रिवन होता है तो वो क्वांटिटेटिव होता है, नंबर्स में होता है. तो ये दोनों ही चीजें हेल्प करती हैं. दैट्स व्हाई वो हमने नाम भी इसी तरीके से दिया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. इनसाइट्स और एनालिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन ट्रैक्शन एंड मोमेंटम. हम यूजर एक्विजिशन करते हैं, यानी कस्टमर एक्विजिशन करते हैं. पहले हम कस्टमर को एक्वायर करेंगे, फिर मोमेंटम मेंटेन करेंगे, और फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे मोमेंटम गेन हो और ज्यादा बढ़े. बैटिंग में होता है ना, क्रिकेट में लास्ट बॉल पे अगर छक्का लगता है, लास्ट बॉल पे सिक्स लगता है, तो मोमेंटम बैटिंग टीम की तरफ चला जाता है कि फिर जब वो बॉलिंग करने आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, ऐसा कमेंटेटर्स कहते हैं. अगर किसी ने स्पोर्ट्स खेला है तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप मोमेंटम गेन करते हो. कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, एनी गेम, आपको बीच में गेम खेलते हुए लगता है कि मैंने वो मोमेंटम ले लिया, वो आपके हाथ सही चल रहे हैं, आपका दिमाग सही चल रहा है, आप प्लान स्ट्रेटेजी कर पा रहे हो, छोटी छोटी चीजों को पकड़ पा रहे हो, दैट इज मोमेंटम. राइट. सो यूजर एक्वायर करना सही तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए, और फिर मोमेंटम को सस्टेन करना, गेन करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड अगेन इट रेलेवेंट, सो एवरीथिंग इज एंड ऑफ द डे एसोसिएटेड विद द revenue. You know that, right? And then community and networking, again, obviously, actively networking is very, very important, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं. हाँ? Why? Because, see, as an entrepreneur, you need to understand that businesses and markets are very dynamic, very dynamic. बहुत सारी चीजें काफी हद तक ऑलरेडी हो चुकी हैं. आज से 100-200 साल पहले जब कुछ कंपनियां खुली थी जो आज भी एग्जिस्टेंस में हैं, और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा किया है. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. दे गेन द पीपल ट्रस्ट. पर एक एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनके साथ था कि वो चीजें इनोवेशन था, वो सब कुछ इनोवेशन था. इलेक्ट्रिक बल्ब उस वक्त पे इनोवेशन थे, तो घर के छोटे लॉक्स तक इनोवेशन थे. जो चीजें आज आज हमको बिल्कुल कॉमन लगती है, बिल्कुल कॉमन लगती है, मसाले, स्पाइसेस, अरे वो तो कहीं से ही मिल जाएंगे. उस वक्त पे वो पैकेट में आना, जैसे एमडीएच देता था, वो एक इनोवेशन था. राइट. पैकेजिंग इनोवेशन आप उसको कह सकते हो. सोप्स, जो हम कहते हैं, अरे सोप्स व्हाट, हम तो घर पे बना लेते हैं यार, यूट्यूब पे वीडियोस, और हम तो ऑर्गेनिक सोप बनाते हैं. पर उस वक्त पे सोप भी एक बहुत बड़ी लग्जरी थी. शुगर आप पढ़िए, टी जो था, चाय के लिए टी, बोस्टन टी पार्टी, दुनिया में कितनी जंग हुई है टी के लिए, सेम जंग हुई है पेपर के लिए, कागज के लिए, जितना पूरी दुनिया में ब्लड शेड हुआ है. अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो सब चीजें उस वक्त के लिए इनोवेशन था. तो वो चीजें हो चुकी हैं. अब अगर आपको चीजों को, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इतना बड़ा बनाना है, तो आपको नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्प्रेड होगा, लोगों तक पहुंचेगा, नीड्स आप तक पहुंचेंगी, फिर आप उस पे आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इवॉल्व करोगे. राइट. कनेक्शंस आपको हेल्प करेंगे टू रीच आउट. सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑलमोस्ट हर चीज तो हम देख ही चुके हैं ना.
तरीका अलग अलग है, लेकिन खाने पीने की चीजें हो गई या फिर कपड़े कपड़े हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स हो गए, काफी कुछ हमने पिछले 100 200 300 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीक हुआ है वो देखा है। उससे पहले भी देखते आ रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, बट हमने अगर देखें तो ये जो मॉडर्न एरा था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अगर हम देखें और स्पेशली पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर का जो एरा है, उसमें कितनी सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, है ना? तो उससे पहले भी आई है, 1800s में भी आई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अब जो उस वक्त पे वो सब नेसेसिटी था, इसलिए उन चीजों को बहुत जल्दी एक अडॉप्शन मिला। अब आप चीजें तो यूज कर रहे हैं, सोडा तो काफी टाइम से अवेलेबल है, नए ब्रांड आते हैं तो लोग उसके लिए इंटरेस्टेड तभी होंगे जब उसमें कुछ नया होगा या वो सही तरीके से कम्युनिकेट होगा, सही तरीके से आप मार्केट को एंगेज कर पाएंगे। क्लोथ्स तो कितने समय से आ रहे हैं, क्लोथिंग जूते, बड़े बड़े ब्रांड नाइकी प्यूमा के होते हुए भी एक किसी ऐसा ब्रांड जो है वो अपनी ब्रांड वैल्यू बना पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कुछ तो नया कर रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उन लोगों तक अपना सामान लेकर जा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ब्रांड बिल्डिंग में भी काम आती है। We need to understand that how we are designing our launch strategy and early traction in the market. हम धीरे धीरे अभी इस सेशन में हम पढ़ेंगे, आगे आगे जाएंगे, आगे आगे हम प्लान करेंगे कि that how we are going to plan these things and how these things will going to help us in longer run. Designing a launch strategy and early traction. So market research and analysis. Understand the market. Very important. How do we understand the market? वो जो हम पढ़ते हैं अभी तक, right? You need to understand that किस तरीके से हम लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं, right? What all metrics are there, right? अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। And then मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं, जिसको हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं, राइट? एंड देन एनालाइज कंपटीशन, उसके अराउंड कंपटीशन कितना है, हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर ऑलरेडी देयर, हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दैट थिंग। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो इजीली क्या कहते हैं उसको, कॉपी करने के लायक होते हैं। मतलब आज आप लेकर आए तो उसके लिए बहुत समय नहीं लगेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हो सकते हैं मार्केट में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज आप एक सेल्फ ड्रिवन कार बनाते हो जैसे टेस्ला है, तो शायद एक समय पे वो वन ऑफ इट्स काइंड थी, लेकिन आज हम देखिए कि कितने सारे ब्रांड्स एकदम से उसके कंपटीशन में आगे खड़े हुए, लाइक BYD, वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग, राइट? एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, आप कोई प्रोडक्ट आज मार्केट में देखते हैं, कल को उसकी रेप्लिका भी आ जाती है, और कई बार वो उससे बेहतर भी होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। तो वो उस कंपटीशन को एनालाइज करना, एनालिसिस करना, कैसे वो अपने आप प्रोटेक्ट करना, उससे डिफाइन योर प्रोडक्ट पोजीशन। हमारा प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, वैल्यू प्रॉपोजिशन वन थिंग, कॉस्टिंग अनदर थिंग, एंड द हम उसको पोजीशन कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हैबिट चेंजिंग होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट ही होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली में यूज करते हैं। तो हम आप पोजीशन कैसे कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट करेगा क्या आपके लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? पेन है वो आपको लिखने में हेल्प करेगा, नोटपैड है वो आपको लिखने में हेल्प करेगा, लेकिन फिजिकल पेपर पे नहीं, एक डिजिटल फॉर्म में। तो दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो। आप अगर किसी टेलर के पास जा रहे हो, या फिर जो छोटे गांव देहात में अगर आप जा रहे हो और टेलर को आप कह रहे हो कि आप इस लैपटॉप पे और नोटपैड से लिखो, शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पेन वहां पे शायद इजीली जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी कॉर्पोरेट में किसी सीए सीईओ के ईए को बोलेंगे कि आप लिखिए, तो देन मे बी दे प्रेफर दैट नोटपैड। सो we need to understand that how we are positioning our product. I'm giving you just one random example, right? Define target audience, identify your ideal customer. We are discussing it since our second module, that how to find out your ideal customer. We have read about it in detail. Create buyer personas. We have discussed that, right? That from where they are, who they are, what they do, what they don't, educated assumptions we create. Tailor your message, it means that craft your message in a way that they'll able to understand. Communicate well, जो भी हमने पीछे भी डिस्कस किया जब हम ये कम्युनिटी नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, दैट हाउ टू कम्युनिकेट सो दैट इट कैन रीच आउट टू द पीपल इन अ वेरी इफेक्टिव वे, एंड इट हेल्प यू टू पोजीशन योर प्रोडक्ट एज वेल, जो कि हमारा पहले
पॉइंट में थर्ड पॉइंट भी है, डिफाइन योर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इट हेल्प्स देयर एज वेल एंड डेवलपिंग अ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, सेट लॉन्च केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं आपके, राइट, यू नो दैट व्हाट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो तीन चार जो कि आपको लगता है कि ये इस पे हमने ज्यादा ध्यान देना है, राइट, एंड देन यू विल वर्क अराउंड इट, क्रिएट कम्युनिकेशन प्लान टू लॉन्च, आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीडिया के साथ कैसे कर रहे हैं, इंटरनल टीम में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन प्लान विद इन सो दैट यू कैन डू इट एक्सटर्नली बेटर। लॉन्च करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कम्युनिकेशन प्लान सिर्फ कंज्यूमर या मार्केट के साथ नहीं करना होता, स्टेक होल्डर्स के साथ भी करना होता है, मीडिया के साथ भी करना होता है, इंटरनल टीम्स के साथ भी करना होता है, दैट एज एन एंटरप्रेन्योर दैट everyone should be aligned with your vision, your understanding and your product positioning so that people accept it, right? Prepare a launch checklist. Checklist means that okay, मेरे को एक पीपीटी चाहिए डन, मेरे को तीन लोग चाहिए डन, एक हॉल चाहिए डन, एक प्रोजेक्टर चाहिए डन, सो देर आर लिस्ट ऑफ आइटम्स विच वी कॉल इट चेकलिस्ट, कि आपने वो लॉन्च की चेकलिस्ट रेडी है कि नहीं, राइट, कौन से मार्केट चैनल्स में आप जाओगे, मार्केट चैनल्स है, आप लोगों को कॉल करोगे या फिर आप ईमेल्स करोगे या फिर आप सोशल मीडिया का एडवांटेज लोगे, these channels you have to decide and then craft a content strategy, आपका कंटेंट किस तरीके से होगा, अगेन ये हेल्प करेगा, मैं वापस आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन एंड एंगेजमेंट में, एंड यू नो हाउ टू get access to your target audience and to get the media attention, you, it is very important that how you create your content, right? Early traction strategies, build an email list, use email marketing, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू रीच आउट पीपल, वो क्लिक बिट होगा ना, कि क्लिक किया आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, यू हैव देयर ईमेल आईडीज, नाउ यू कैन रीच आउट टू देम, सो email marketing is one way to build an email list, then leverage online communication, right? ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में बहुत सारी चीजें हैं आपके, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सो देर आर ऑल मैनी अदर कम्युनिटीज आर देयर टू क्रिएट द ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एंड व्हेन वी से ऑनलाइन कम्युनिटीज, लाइक अगर हार्ली डेविड आपका कोई प्रोडक्ट है जो हेलमेट से रिलेटेड है, तो आप हार्ली डेविडसन की कम्युनिटीज में जाके उसको अपना डिस्कस कर सकते हो, एडवर्टीज कर सकते हो, तो आपने वो क्या किया कि एक लेवरेज कर लिया एक ऑनलाइन कम्युनिटी, करेक्ट, हमने डिस्कस किया था दैट हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स की कम्युनिटीज है, रॉयल एनफील्ड की भी है, वो कई बार 5-5 600 लोग रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, तो अगर आपने उन कम्युनिटीज पे जाके बताया हमारे पास हेलमेट है, स्मार्ट हेलमेट है, इसके ये एडवांटेजेस है, तो the likelihood of getting your product accepted and get good traction is more. So वो आपने क्या किया, एक ऑनलाइन कम्युनिटी को लेवरेज किया, एंड ऑफर इंसेंटिव्स, ऑब्वियसली डिस्काउंट, फ्री ट्रायल्स, होता है ना कि जब आप किसी सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेट सपोज नेटफ्लिक्स की या एप्पल टीवी की, तो उसमें लिखा आता है कि फर्स्ट 1 मंथ फ्री, तो आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करिए, वरना यू कैन कैंसिल इट, सो फ्री ट्रायल्स, right? Then partner strategically, we have discussed it in a previous tools that in previous sessions, that how to collaborate, Apple, Nike, uh, Uber, Spotify, तो आप पार्टनर्स करते हो, कोलैबोरेट करते हो to make the more traction, right? Puma, Mercedes, so that कि वो लोगों को और इंटरेस्ट आए कि एक तो ब्रांड अच्छा है, ऊपर से इनका कोलैबोरेटिव ब्रांडिंग बहुत अच्छा है, मेजर एंड आइटरेट, वही आइटरेशन, ट्रैक योर केपीआईज, जो हमारे केपीआईज है उसको ट्रैक किया, एनालिसिस किया, फिर जरूरत पड़ी तो अडॉप्ट किया उसके तरीके से, नहीं तो उसको चेंज किया, सो वो लूप क्रिएट करना, सो दैट्स हाउ market search and analysis, defining the target audience, developing a go-to-market strategy, early traction strategies. You know, these are comes under the designing launch strategy and early traction. And we have discussed it in since the inception of this course, one by one. ये सब चीजें हम एक एक बार कहीं ना कहीं पर डिस्कस कर चुके हैं, right? So now we will going to discuss in detail that how go-to-market strategy works and what all components are there. So just uh, be with us, entrepreneurs, so that we can learn more in detail about this topic.